Hello everyone, I am Harmeen Kaur from Meritorious School, Amritsar. Uh, my topic of presentation is mole concept and methods of expressing concentration. Very important topic in exam point of view. So mole concept topic, very important. Mole concept and methods of expressing concentration. So before we start the topic, firstly we want to know what are the learning outcomes. So at the end of topic, students should be able to define moles in terms of carbon-12 and Avogadro constants, interconvert between moles and number of moles of particles, molar volume of gas at STP at room temperatures, define calculations, calculate molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. So let's start the topic mole concept. A mole is defined as a amount of substance which contains equal number of particles, atoms, that is atoms, molecules, ions, which is exactly equal to the 12 gram of carbon 12, which is exactly equals to the 12 gram of carbon 12. So 1 mole of carbon 12 atom is exactly equals to the 12 gram and contains 6.02 10 multiplied by 10 to the power 23. Now the value 6.02 10 to the power 23 is also known as a Avogadro constant, and it is generated by the Na. It is called Avogadro constant. Now for examples, 1 mole of chlorine atom इसके इक्वल होगा उसके एटॉमिक मास, क्लोरीन के एटॉमिक मास के इक्वल, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब क्लोरीन एटम्स है एवोगैड्रो कांस्टेंट के इक्वल. सो इट मीन्स 1 मोल क्लोरीन एटम इज इक्वल टू 6.02 10 to the power 23 क्लोरीन एटम is equal to 35.5 gram. Similarly, we take the example of chlorine molecules. ठीक है. So chlorine molecule, how it is formed? Chlorine molecule is basically formed by the combining 2 chlorine atoms. So when we combine the 2 chlorine atoms, so it means 35.5 plus 35.5 is equal to 71.1 gram chlorine molecule. So 1 mole of chlorine molecule is equal to the 71 gram of chlorine molecule is equal to the number of atoms involved in 1 molecule, that is 2. So it means 6.022 10 to the power 23 multiplied by 2 chlorine atoms is equal to, so that much value is the 1 mole of chlorine molecule. So another example, very important example, that is 1 mole of NH3. 1 mole of NH3 is equal to 6.02 10 to the power 23. So total number of atoms involved in NH3 molecules are 4. So it means 4 multiplied by Avogadro number. So 1 mole of NH3 is equal to 6.02 10 to the power 23 molecules is equal to 6.10 to the power 23
multiply by 4 atoms is equal to 6.02 10 the power 23 n atoms, or is equal to 6.02 10 the power 23 multiply by 3h atoms. So next concept, very important concept, that is the molar mass. Molar mass in general, how can we calculate? It is the basically additions of atoms, number of atoms involved in the molecules. So basic technical definition of molar mass. Technical definition of molar mass is the mass of 1 mole of element or 1 mole of compound is referred to as a molar mass. So unit of molar mass is gram per mole. For example, if we want to calculate the molar mass of magnesium, so magnesium has an atomic mass 12 gram per mole and atomic mass 12 gram per mole and molar mass is 24 gram per mole. So another example we also consider, for example, we take methane. So methane has a formula CH4. So carbon has atomic mass 12 and hydrogen has of 1. So how many atoms are involved in the how many atoms of the hydrogen atom involved in the methane molecule? That is 4. So it means, so how can we calculate? That is 12 plus 4 is equal to 16 gram per mole. So molar mass of methane is 16 gram per mole. Now how will we calculate the number of moles? So number of moles calculate ਕਰਨ ਦਾ formula ਹੈਗਾ mass divided by molar mass. For example, calculate the number of hydrogen atom in 1 mole of NH3. So it's ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ solve ਕਰਾਂਗੇ. 1 mole NH3 ਚ 3 हाइड्रोजन एटम है गया, ठीक है. सो नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करांगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय द एवोगैड्रो नंबर Na. सो इट मीन्स हाइड्रोजन एटम 3 ने 3 मल्टीप्लाई बाय 6.022 10 the power 23. This will give you the 1.807 10 the power 24 atoms are involved in 1 mole of ammonia. Another example, very important example. Calculate the number of bromide ions in 2 moles of CbR2. So 1 mole CbR2, that is calcium bromide. So let's solve this numerical. 1 mole calcium bromide ਦਾ contain करता है 2 moles bromide ions ਦੇ, ठीक है. तो 2 mole calcium bromide ਦੇ किन्ने हो जाएंगे? 4 moles of bromide ion. So number of bromide ions ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ सकते हैं? ਆਪਾਂ 2 moles ਚ ਕੱਢਨੇ हैं. So it means क्या होगा? 4 multiplied by 6.022 10 the power 23 is equal to 1.0246 multiplied by 10 the power 4 ions. So the number of bromide ions is 1.2 10 the power 24 ions. Now mole concept. This is a subtopic of gases. So molar volume of subtopic of mole concept.
Mole concept of gases. Molar volume of any gas at STP is equal to 22.4 decimeter cube mole per mole. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यही वैल्यू तुहानू याद होनी चाहिए है कि मोलर वॉल्यूम कोई भी गैस का एट STP कंडीशन की इक्वल होएगा 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। हुण STP की है, STP दैट इज स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रेशर। हुण स्टैंडर्ड टैंपरेचर कितना हुंदा हैगा, टैंपरेचर दी वैल्यू T इज इक्वल टू 273.15 केल्विन एंड प्रेशर की है 1 एटमोसफेयर। नाउ 1 मोल गैस द वॉल्यूम के इक्वल हो गया 22.4 डेसीमीटर क्यूब। सो डेसीमीटर क्यूब लीटर च भी आप लिख सकते हैं एट STP कंडीशंस। सो जे आप करना होए वॉल्यूम ऑफ गैस, उदा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हैगा वॉल्यूम ऑफ गैस in decimeter cube is equal to number of mole multiplied by 22.4 decimeter cube per mole. So 1 mole of gas volume has 24 decimeter cube at room temperature. 1 mole गैस ਦਾ वॉल्यूम कितना होएगा रूम टेम्परेचर ਤੇ 24 ਤੇ STP कंडीशन ਤੇ कितना होएगा 22.4 डेसीमीटर। सो वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यूज। सो इन्हों बड़े ध्यान नाल याद करके रखना है कि रूम टैंपरेचर ते वैल्यू कितनी होएगी ते STP ते कितनी होएगी। हुण रूम टैंपरेचर ते वॉल्यूम ऑफ गैस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब। सो फिर रिपीट कर देनी आ, जे असी STP कंडीशंस ते करांगे ते वॉल्यूम ऑफ गैस का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। जे असी रूम टेम्परेचर ते देखिए तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय 24 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। लेट्स टेक द एग्जांपल of mole concept of gases, very important example, and it is basically the NCERT book example. So a balloon example की है, a balloon is filled with hydrogen gas at STP if the volume of balloon is 2.24 decimeter cube. Calculate the amount of hydrogen gas. And read the numerical carefully. First condition. बड़े ध्यान नाल जिहड़ा है तुसी ये numerical कोई भी numerical attempt करना है, सब तो पहले उन्होंने समझना है कि उन्होंने फाइंड की करना है। सो सब तो पहले वो कह रहा है कि बैलून इज फिल्ड विद द हाइड्रोजन गैस। बैलून हाइड्रोजन गैस नाल फिल्ड है STP कंडीशंस ते वॉल्यूम कितना दिता होया 2.24 डेसीमीटर क्यूब। आपां की करना अमाउंट, हुण जे 24 1 मोल की इक्वल हुंदा है 22.4 डेसीमीटर क्यूब ते, ठीक है। सो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/22.4 डेसीमीटर क्यूब ते आपां 2.24 डेसीमीटर क्यूब दे मोल्स कटने हैं। सो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1/22.4 मल्टीप्लाई बाय 2.24। सो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0.01 मोल। नाउ हुण आपां नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े आ कढने आ गैस दे वॉल्यूम। सो फॉर्मूला की सी वही वॉल्यूम ऑफ गैस वाला फॉर्मूला लगाना। इहदे विच की है कि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल। सो 2.24 डेसीमीटर क्यूब ओवर 22.4 डेसीमीटर क्यूब पर मोल इज इक्वल टू
कितने नंबर ऑफ मोल्स का आ जाएगा 0.1 मोल। सो सिंपल जिहा न्यूमेरिकल है, ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, सोल्यूशन 1 भी ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, वो कह रहे हैं कि a sample of carbon dioxide has a volume 56 सेंटीमीटर क्यूब एट STP। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सैंपल हैगा, ਉਹਦਾ वॉल्यूम कितना है 56 सेंटीमीटर क्यूब एट स्टैंडर्ड टैंपरेचर एंड प्रैशर। नाउ कैलकुलेट, ਆਪਾਂ तीन चीज़ां कैलकुलेट करनी है। ठीक है, सो पहला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस किवें निकलणगे, यूजिंग फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस का फॉर्मूला लगाओगे, ਤੁਹਾਨੂੰ वॉल्यूम दिता होया। ठीक है, तो 22.4 नाल जिहड़ा करके वो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे जिवें पिछले न्यूमेरिकल च कढ़े। उस बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम ही है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ सैंपल, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने ने 2, टोटल एटम्स कितने हैं 3। सो एवोगैड्रो नंबर नाल मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आ जाएगा 3.011 10⁻21 एटम्स। हुण एक चीज़ है जो न्यूमेरिकल्स वाले करनी है कि 1 डेसीमीटर क्यूब कितने इक्वल होंदा है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज सेम एज 1 लीटर। सो ये कन्वर्जेंस का ध्यान जरूर रखना है। उस तो बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentrations of solutions. So there are 5 methods, very 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 important. 1 or 2 questions are come in the PSEB exams. So these 5 methods are molarity, mole fraction, percentage by mass, percentage by volume. So let us define ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ definition ਕੀ है, units ਕੀ है। ठीक है, so देखते हैं one by one। First is the molarity। molarity की है, molarity is basically the number of moles of solute per cubic centimeter or liter of the solution। सो मोलैरिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिता होया नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। यूनिट्स की ने मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी हो सकता है और मोल पर लीटर भी हो सकता है। सो नोट की करना आपा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। वही सेम वाली पिछली कन्वर्जन है कि ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਲੀਟਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੇ 1 ਡੈਸੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1000 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਕਿਊਬ ਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਆਫ 1.71 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज फॉर्मूला की है C12H22O11 dissolved in 0.5 liter of water। So read the statement carefully। First is the molarity of solution। आप molarity of solution कैलकुलेट करनी है जिहदे च सानू वेट दिता होया, वेट कितना दिता है 1.71 ग्राम सुक्रोज। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है C12H22। उस तो बाद तुसी वॉल्यूम भी दिता होया सानू, उस तो बाद सानू एटॉमिक मासेस भी दिते हैं। सो आपां कैलकुलेट करांगे। कैलकुलेट करन तो पहले जिहड़ा असीं सुक्रोज का मोलर मास कढना। सुक्रोज का फॉर्मूला की है C12H22O11। सो C12 मतलब 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 22
plus 11 multiplied by 16. So this will give you the 342 gram per mole. Now ਹੁਣ नंबर ऑफ मोल्स करने हैं, वो किधे इक्वल होएगा 1.71 ओवर 342 ग्राम पर मोल, किधे इक्वल आ जाएगा 0.005 मोल। उस तो बाद मोलैरिटी कटन दा फॉर्मूला की है मोल्स ऑफ सुक्रोज डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तुहाडे कोल 0.0005, ठीक है। वॉल्यूम तुहानू दिता होया दैट इज 0.5, सो मोलैरिटी कितनी आ जाएगी 0.01 मोल पर लीटर। सो मोल पर लीटर नू तुसी कैपिटल एम भी लिख सकते हो। कैपिटल एम मतलब मोलर, ठीक है। कैपिटल एम नू असी की लिखना है मोलर। नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज मोलैलिटी। Molality is basically designated by the M. So formula of calculating molality is M is equal to moles of solute over mass of solvent. Mass of solvent in kg. So units की होंगे मोल पर kg और मोलर और एम। सो ਆਪਾਂ कुछ चीज़ां नोट करनियां है। जे ਆਪਾਂ सोल्यूशन का मास करना है तो सोल्यूशन का मास, सोल्यूशन किस तरह बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सोल्यूट की होंदा है लैसर अमाउंट सबस्टेंस एंड सॉल्वेंट की होंदा है मोर अमाउंट सबस्टेंस। सो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। जे आप वॉल्यूम करना तो वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू द नॉट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं मोलैरिटी दी। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन containing 24.4 gram of sulfuric acid in 198 gram of water। एक बारी फिर रीड करते हैं न्यूमेरिकल। गिवन सानू दिता होया आपां मोलैलिटी फाइंड करनी है सल्फ्यूरिक एसिड दी। गिवन सानू दिता है weight of sulfuric acid that is 24.4 gram sulfuric acid and water दा कितना weight दिता है 198 ग्राम वाटर। मोलर मास कर लांगे H2SO4 दा कितना आएगा 98.08 ग्राम पर मोल, ठीक है। सोल्यूशन देखते हैं। पहले अपन नंबर ऑफ मोल्स कटांगे सल्फ्यूरिक एसिड दे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 24.4 ग्राम डिवाइडेड बाय 98.08 ग्राम पर मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के कितने आएंगे 0.24488 मोल। मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन, हुण मोलैलिटी का फॉर्मूला तुहानू पिछे दस्सिया है दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सोल्यूट तुसी कैलकुलेट कर लिया दैट इज 0.2488 एंड डिवाइड आप करना है नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम च गिवन दिते सी 198 ग्राम, आपां उन्हां नू किलोग्राम च कन्वर्ट किया। किलोग्राम च कन्वर्ट करके कितना होया 0.198 kg। सो डिवाइड कर दांगे मोलैलिटी दे फॉर्मूले। सो साडे कोल आंसर कितना आ रहा है 1.26 m। सो एक चीज का ध्यान रखना है m स्मॉल m एंड कैपिटल M च की फर्क है। जिहड़ा स्मॉल m है दैट इज डेसिग्नेटेड मोलैलिटी, ठीक है, एंड कैपिटल M इज डेसिग्नेटेड टू द मोलैरिटी। क्लियर? सो बेसिक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी इज द बेसिकली molar solution and molality is the basically the molal solution. So next
very basic term, that is mole fraction. Mole fraction is the ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all component. So mole fraction of any component is designated by the capital X. Suppose in a solution we have two components A and B. ठीक है, so let us calculate the mole fractions of component A. मोल फ्रैक्शन कंपोनेंट ए दी कैलकुलेट करनी है, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, XA इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट. सो XA किहदे इक्वल हो जाएगा, NA ओवर N टोटल. ठीक है, हुण जे आपां B दी कढनी है, B कंपोनेंट दी कढनी है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, XB इज इक्वल टू NB ओवर N टोटल. ठीक है, जे XC दी कढनी है, 3 कंपोनेंट्स वाला सोल्यूशन है, तो फिर XC इज इक्वल टू NC ओवर N टोटल. फिर उन्हें दस्या है कि ये जिहड़ी है तीनों कंपोनेंट्स दी मोल फ्रैक्शन नू ऐड करोगे वो हमेशा किहदे इक्वल होएगी, 1 दे. कोई भी मिक्सचर है 3 कंपोनेंट्स नाल बनिया, उन्हां दी मोल फ्रैक्शन दी कंडीशन की होएगी, तो सारियां दी मोल फ्रैक्शन ऐड करके किहदे इक्वल आएगी, 1 दे. जे 2 कंपोनेंट्स दा बनया तो 2 XA प्लस XB इक्वल्स टू 1. एग्जाम्पल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ copper chloride in a solution prepared by dissolving 0.30 mole of copper chloride in 40 mole of water. So given की है molar mass water